ओके, सो एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमें स्टडी करनी है. सो अर्लियर लेक्चर में हमने किया व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, what is the velocity in simple harmonic motion, what is the acceleration in simple harmonic motion. और हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्टडी की, और हमने फेज और टाइम का रिलेशन निकाला सिंपल हार्मोनिक मोशन में. सो ये अभी तक हम कर चुके हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोज प्रीवियस इक्वेशंस, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. We know that simple harmonic oscillator, it is doing to and fro motion, it is doing back and forth motion, right? And all these motions, basically these are periodic motions. So simple harmonic motion is a periodic oscillator. Simple harmonic oscillator is a periodic oscillator, and all the oscillations, they are about a mean position. We already discussed in detail what is the mean position. Mean position is that point about which or at which the net force is zero, or we can call this is the position of equilibrium, right? So अब जब कोई चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी, पीरियोडिक मोशन करेगी, किसी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगी, सो व्हाट अबाउट द एनर्जीज, कितने टाइप की एनर्जीज उसमें स्टोर्ड होंगी, ये हमें डिस्कस करना है. सो लेट अस गो फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. सो ऑलरेडी वी नो दैट व्हेन एनी ऑसिलेटर, maybe simple harmonic oscillator or maybe any type of oscillator, if it is oscillating, so basically it is doing the mechanical work. When it is oscillating, it is doing the mechanical work. So to do that mechanical work, we need the mechanical energy. And we also know that mechanical energy, basically it is of two types, kinetic energy and potential energy. So here our simple pendulum that contains two types of energies. One is the kinetic energy, other is the potential energy. And we know that kinetic energy, it is the energy stored in any body, in any object, when the object is in motion. So during the motion, whatever energy the object carries, that is called the kinetic energy. And what about the potential energy? It is the energy contained in the body or in the object when the object is stationary, when the object is at rest, when the object is not doing any motion, the velocity of the object is zero. So in that case, the energy contained or energy stored in the body, that is the potential energy. And we also know that what is the expression for kinetic energy? So kinetic energy, basically it is half mv square. Kinetic energy, it is half mv square. And already in our earlier lecture we have studied the velocity in SHM. So velocity in SHM, it is equal to omega root a square minus y square, where omega is called the angular frequency. Omega is called the angular frequency, and we know the value of omega. The omega, basically it is equal to 2 pi into linear frequency, or we can call omega is equal to 2 pi upon t. So basically these are the values of angular frequency. So now what is the velocity in SHM? Velocity in SHM is equal to angular frequency and root a square minus y square. What is a? A is called the amplitude. A is called the amplitude, and y is called the displacement from the mean position, and y is called displacement from mean position. Mean position, already we know that it's a very important position where the net force on the body is zero and the object is in equilibrium. So this is the velocity. Velocity हमें पता है. Now we can find the kinetic energy. So kinetic energy, that is equal to half m and v square. Already हमें v पता है, v is known.
So यहां से हम v हमें पता है, v किसके बराबर है, दिस इज द इक्वेशन फॉर v. नाउ वी कैन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो अब वो कैसे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, लेट अस गो फॉर दैट. So now put the value of v, we will get omega square a square minus y square. So ये हमने v की वैल्यू को प्लेस किया. So this is my v, this is my v. Now after putting the value of v, the kinetic energy that is equal to 1/2 m omega square a square minus y square. This is my kinetic energy, right? Now this can be written as half m omega square a square minus y square. Right? And there is one more method to write the velocity of the object doing simple harmonic motion. So the velocity of the object doing simple harmonic motion, second formula velocity का क्या है? What is the second formula for the velocity? A omega cos omega t. कहां से आया हमारे पास? Because we know the displacement x is equal to a sin omega into t. So this is the equation of displacement of the particle doing simple harmonic motion. X is equal to a sin omega t. अब यहाँ displacement पता है, we can find out the velocity. Now differentiate this. Do dx upon dt. So we will find a cos omega t और omega t का derivative omega. So we will get a omega cos omega t. So this is the second a method to find out the velocity in SHM. ये पहला फार्मूला है velocity in SHM, ये सेकंड फार्मूला है velocity in SHM. सो पहले फार्मूले को रख के हमने काइनेटिक एनर्जी को यहाँ से इवेल्युएट किया. अब हम सेकंड फार्मूले को रख के भी काइनेटिक एनर्जी के लिए इवेल्युएट कर सकते हैं, राइट. सो लेट अस गो फॉर दैट. सो काइनेटिक एनर्जी के लिए सेकंड फार्मूला आ गया, सेकंड फार्मूला हमारे पास आ गया v square. So now this is my v square, half m, m तक तो as it is, उसके बाद v square means a square omega square cos square omega t. Now काइनेटिक एनर्जी के दो फार्मूले हम निकाल चुके हैं. दिस इज द सेकंड फार्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो एक बार वापस चलते हैं और इसको एक बार दोबारा देखते हैं. सो दो फार्मूले हम निकाल चुके हैं काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि दो वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं. जितनी वेलोसिटी हमारे पास होंगी उतने ही काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले हम निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट हमारे पास वेलोसिटी ये थी, इस वेलोसिटी को यूज करके काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये आई, और अब इस वेलोसिटी को यूज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास सेकंड फार्मूला आ जाएगा. सो द सेकंड फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज दिस. सो दो वेलोसिटी का यूज करके दो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले हम निकाल चुके हैं. अब हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना थोड़ा सा हटके है. सबसे पहली बात तो यह कि हमें जानना जरूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है. पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ यही नहीं होती कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और रेस्ट में जब उसकी वेलोसिटी जीरो है तब उसके अंदर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी. सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी इतना ही नहीं होता. अब पोटेंशियल एनर्जी कई बार हम वर्क करते हैं और वर्क करने के बाद भी पोटेंशियल एनर्जी वर्क की फॉर्म में स्टोर होती है, या यूं कहें कि जो हमने वर्क किया वो वर्क ही बॉडी के अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो बेसिकली अब सबसे पहले हम ये निकाल लें कि कितना वर्क किया हमने, कितना वर्क किया. जब कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा या बैक एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आएगा तो कितना वर्क हुआ. अब ये वर्क हमने अगर कैलकुलेट कर लिया तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो
अब सबसे पहले हम कोई पार्टिकल चूज करेंगे विच इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें पता है उस पार्टिकल के ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती है जो बैक उसको मीन पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करेगी, रिस्टोर करेगी मीन पोजीशन की तरफ, बोथ इन द लेफ्ट एंड राइट साइड। और वो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है? दैट रिस्टोरिंग फोर्स is given by this formula, F is equal to m into a, F is equal to m into a, m as it is है, और a हमें पता है acceleration in the simple harmonic motion, that is equal to omega square into y. Acceleration in the simple harmonic motion is omega square into y, right? Because this is a restoring force acting opposite, so यहाँ पे आ जाएगा minus sign. So this is minus m omega square into y, और ओमेगा स्क्वायर इनटू y, दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, राइट? सो ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो बार बार ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगी। अब फोर्स हमें पता है, वर्क डन हम निकाल सकते हैं एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए कि अगर हमारा ऑसिलेटर मीन पोजीशन से dy डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फोर्स लगी है F जो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो वर्क डन कितना हुआ? W इज इक्वल टू माइनस F इंटू डी वाई। F की वैल्यू हमें पता है माइनस M ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। सो ये क्या हो जाएगा? माइनस M, ये ऑलरेडी माइनस था तो ये हो गया M ओमेगा स्क्वायर इंटू डी वाई, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे M ओमेगा स्क्वायर इंटू डी वाई। सो ये आ गया वर्क डन M ओमेगा स्क्वायर इंटू डी वाई, राइट? m ओमेगा स्क्वायर इंटू डी वाई, ये हमने निकाल दिया वर्क। अब ये तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने वर्क निकाला। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के अगर हमें मीन पोजीशन से पूरे वाई डिस्टेंस के लिए, पूरे कंप्लीट पूरा एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो ये हमारा हमने एक लाइन लगाई, ये है मीन पोजीशन जहां पे हमारा x 0 है, और ये है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन जहां पे x इज इक्वल टू प्लस ए मैंने बताया था, और इधर x इज इक्वल टू माइनस ए ये होगा। सो अब मीन पोजीशन से जब ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो या तो x इज इक्वल टू 0 रख लो, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस ए है, ऐसा कर लो इसको। तो हमने यहाँ पे जो लिमिट लगाई है वो 0 टू y है, मींस y इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन, y इज इक्वल टू a एक्सट्रीम पोजीशन। सो हम चलेंगे y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू a, राइट? और फिर चेक करते हैं वर्क कितना होगा। सो हमने फार्मूला लगाया, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw, कहां से कहां तक? 0 टू y, मतलब कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? a है ना। अगर हम बीच के लिए निकालते हैं, कहीं पे भी बीच के लिए, अभी हम एक्सट्रीम पे नहीं गए, तो यहाँ पे y 0 है और इधर y की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, तो किसी भी y की वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे निकाल लिया कि y 0 से कहाँ पे है y, ठीक है? तो ऐसे चलते जाएंगे तो हम अपना वर्क डन निकाल सकते हैं, राइट? और अभी हमने एज्यूम किया कि यहाँ पे हमारा y है, तो हमने यहाँ से x इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू y तक निकाला है, राइट? सो ऑलरेडी dw क्या है? m ओमेगा स्क्वायर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, राइट? तो ये बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन के अंदर बचा y इंटू डी वाई, सो इसको इंटीग्रेशन को सोल्व किया, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, और ये हमारे पास आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। सो दिस इज द वर्क। अब यहाँ पे जब ये बॉडी पहुंची y पोजीशन पे, 0 से y तक पहुंची, 0 से यहाँ तक पहुंची, 0 से यहाँ तक पहुंची, तो ये वर्क स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? तो यहाँ पे ये वर्क कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? पोटेंशियल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी लिख लेता हूं। सो y इज इक्वल टू 0 पे
वर्क कितना था, 0 था, और y इज इक्वल टू y पे वर्क कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, राइट। तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि हमारा वर्क यही पोटेंशियल एनर्जी है, हमारा वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी है, हमारा वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी है। सो जितना वर्क है, वर्क कितना है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, तो इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी मान लें। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, राइट। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, अब y हमें पता ही है ऑलरेडी, y की इक्वेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, y इज इक्वल टू ये जो y निकाला हमने, ये y क्या चीज है, a साइन ओमेगा इंटू टी, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू टी। अब y की जगह क्या रख दो, यहाँ पे इस y की जगह प्लेस कर दो a साइन ओमेगा इंटू टी, तो ये बन जाएगा a स्केयर साइन स्केयर ओमेगा इंटू टी। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। सो हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दिया और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल दिया, राइट। अब हमें डिस्कस करना है कि जब हमारा ऑसिलेटर मीन पोजीशन से बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, तो मैंने बताया था एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो y की जगह आ जाएगा एम्पलीट्यूड। तो y की जगह ये जो y है, पोटेंशियल एनर्जी में जो y था, इसकी जगह हमने रख दिया a एम्पलीट्यूड, राइट। और काइनेटिक एनर्जी में भी ऐसे ही करेंगे। काइनेटिक एनर्जी में भी, ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन थी 12 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, बट काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारा ऑसिलेटर, ये हमारा कोई पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन और ये कोई एक्सट्रीम पोजीशन, ये कोई एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसे ही एक एक्सट्रीम पोजीशन इधर लेफ्ट में होगी, एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब हमारा पेंडुलम मीन पोजीशन से चल के एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम हो जाएगी, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। और वो मैक्सिमम कितनी होगी, उस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो पता ही है, वो 0 होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम, मतलब कि जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, सो एक कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए हमारा पेंडुलम यहाँ पे रुकेगा, एंड देन इट विल गो बैक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वापस मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, राइट, वो वापस मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। अब हमें इस एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी काउंट करनी है। तो टोटल एनर्जी हमें पता ही है, विच इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगी यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी कितनी आई एट एक्सट्रीम पोजीशन, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, राइट। ये आ गई टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, और टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज 0। अब ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे द टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन। सो पहले वी विल फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। सो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, y 0 है, तो y की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाओ, ये अगर y 0 कर दिया तो क्या बचा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब इसको लिख लेते हैं कि मीन पोजीशन के ऊपर, दिस इज आवर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, और उस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी,
1/2 m⍵² into a। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, इट इज इक्वल टू 1/2 m⍵² into a। Now the total energy at mean position, it is a sum of potential energy and kinetic energy, because the potential energy at the mean position is 0, so the total energy at the mean position, it is only the kinetic energy। so यहाँ पे सिर्फ kinetic energy मिली हमें और यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी मिली। ऐसे ही यहाँ पे दोबारा फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, राइट। तो इसका मतलब मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी है और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है। सो एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन, जब कोई चीज मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी, सो इट इज ए कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो वापस एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन आएगी, अगेन while going back toward the mean position, it is again the conversion of potential energy into kinetic energy, right? So when again it go in the negative side, again conversion of kinetic energy into potential energy, and back from potential energy into kinetic energy। so one form of energy is converted into another form, and kinetic energy is maximum at the mean position and potential energy is maximum at the extreme position। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे v मैक्स है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, राइट। सो ये तो हमारा हो गया टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पे कितनी होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होगी, राइट। और यही हमें कैलकुलेट करना था। सो टोटल एनर्जी ये मीन पोजीशन पे हमने निकाली। किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, कहीं पे भी निकाल लो, मिड में मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में कहीं पे भी किसी भी जगह अगर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो फार्मूला यही लगेगा। उसी पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा। सो एक चीज हमने देखी कि काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकाली। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली निकाली 12 mv² लगा के, वेलोसिटी दो तरह की थी तो दोनों से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, बट पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम 0 टू y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू y। सो वर्क हमने निकाला और फिर वो वर्क उस पर्टिकुलर y पे स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो दिस वाज द एनर्जी इन SHM। एनर्जी इन SHM बेसिकली इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो पोटेंशियल ये वही बता रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ। एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। एट एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, राइट। ये एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। सो लेट अस ट्राई सम क्वेश्चन। समझ में आ रहा है अभी? वैभव, आयुष, सुहानी, वंश, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जरा ट्राई करो। अब मेरी बारी खत्म, अब तुम्हारी बारी स्टार्ट। एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, मैक्सिमम, जीरो, इनफाइनाइट? मैक्सिमम। यस, मैक्सिमम होगी। एट मीन पोजीशन कितनी होगी? मैक्सिमम होगी। If the frequency of the vibration is n, then the frequency of vibration of its potential energy कितना होगा? ये तो मैंने कराया नहीं है तो छोड़ दो। ये तो टोटल एनर्जी इन SHM, ये तो मैं बता ही चुका हूं। टोटल एनर्जी इट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। सो टोटल एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे? ET इज इक्वल टू EK प्लस EP। और काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखा? हाफ m⍵² a² माइनस y²। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखा? हाफ m⍵² y²। सो टोटल एनर्जी क्या आ गई? देखो यहाँ से इसको सोल्व कर लिया इस इक्वेशन को,
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल दो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई। स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है? सर अभी तो नहीं है। अब देखो हो रही है स्क्रीन शेयर। Sir, अब हुई। सो एक्सप्रेशन फॉर Yes, sir. total energy, kinetic energy plus potential energy, kinetic energy 1 by 2 m omega square a square minus y square, potential energy 1 by 2 m omega square y square. So half m omega square कॉमन निकाल दिया, so a square minus y square, y square से y square कैंसिल कर दो, y square ये कट गया, so total energy is equal to half m omega square a square. So total energy is equal to 1 by 2। अब k की वैल्यू क्या रखी है हमने यहाँ पे, ये k ये कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, सो k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल एनर्जी इन SHM। क्लियर? टोटल एनर्जी इन SHM। Yes, sir. तो ठीक है, आज इतना ही करेंगे, ठीक है ना, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, अटेंडेंस sir. कौन कौन है? आयुष, सुहानी, वैभव, वंश। यस सर। ठीक है, ओके ओके बच्चों, बाय।